Before we move further, draw this. This is the pendulum bob. Now it oscillates like this. ऐसे ऐसे oscillate कर रहा है. So हाँ, just we started. Okay. So when this bob goes to this position, this extreme end is called right extremity. Extremity means end position. And the left end, when it comes here, this position is called left extremity. When it goes to the right extreme position, this maximum displacement is called amplitude. Left extreme position, maximum displacement in opposite direction is also called amplitude but negative, because this middle position, that is mean position. Mean position is given by x equals to 0, because this is x-axis, positive, negative. X equals to 0. When it reaches here, x is maximum. How much? Maximum value of displacement is called amplitude. Similarly, when it moves to this position, displacement is not measured from here, it is measured from here. If the pendulum is on this side, this is the displacement, whatever be the distance. If the pendulum is on this side, this is the displacement, whatever be the distance. So this maximum displacement is written as x, means displacement, given by minus a. In this picture, the maximum angle that it makes is called angular amplitude, theta naught. This angular amplitude theta naught should be less than 4 degree. Why? Because if the angle is small, if theta is small enough, how much? Less than 4 degree. We can write these things to make calculations simple. Sin theta nearly equals to theta. In place of sin theta, we may write theta if theta is small. How much small? It should not exceed 4 degree. Remember this? Next, ये पेज में बहुत कुछ आएगा. If you can remember them, very very helpful. कैसे? When the bob moves from one direction to the mean position to any extreme position, it takes a time t by 4. This position to mean position back, another t by 4. Then mean position to the other side, extreme position, another t by 4. And finally back to the mean position, last t by 4. So that these 4 t by 4s, t by 4 जाना, t by 4 वापस आना, एक साइड का मोशन हुआ, टोटल कितना हुआ? t by 2. फिर इस साइड में t by 4 जाना और t by 4 वापस आना, कितना टाइम हुआ? और t by 2. This is a complete oscillation and given as the total time of oscillation is given as time period t. And how time period is related to other quantities? Omega is given by 2 pi by t, that we learnt in circular motion, or 1 by t can be replaced by n. N means frequency. So these are very handy formulas. बहुत काम आएगा. Write them. But the मजेदार part is this. When this pendulum bob comes to this position, the middle position, that means displacement of this position is x equals to half of the total path in any direction, that is half of amplitude, a by 2. So in one side, the total time taken to move it is t by 4. So half of that displacement to move this position, if I write it say O, this is P, and this extreme is Q. So we can say the particle is executing SHM. Which particle? This bob of the pendulum. This is called bob.
this bob of the pendulum is making SHM with or in between two points P and Q. बीच में जो पॉइंट हुआ मेन पोजीशन. टू मूव फ्रॉम O to P किसी एक साइड कितना होगा T/4 and time to move from O to half that position, say this is capital X, any position, so TO to capital X, this time half of the T/4 किसी एक साइड में जाने का आधा रास्ता आधा टाइम होगा, ऐसा नहीं होगा. सो T/4 का हाफ कितना होता है T/8. रॉन्ग आंसर, और ऐसा नहीं होगा. और इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. वी विल कम बैक टू दिस लेटर. ठीक है, सिर्फ इसको लिख के रखो. जो भी बोर्ड में दिख रहा है सबको कॉपी करके लिख के रखो. मेक श्योर यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स. जितना लिखोगे सीखोगे यू एम्पावर योरसेल्फ. आगे चल के शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, थ्योरी इजी हो जाएगा, वेरी इजी. ऐसे टफ नहीं है इफ यू प्रैक्टिस. नेक्स्ट पार्ट दैट इज, आज का जो पार्ट है वो है ये, हेडिंग दो, टू प्रूव अ मोशन टू बी SHM. ये हम लोग प्रूव करेंगे. और ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दिस मोशन इज SHM. 3 मार्क्स से 4 मार्क्स आता है. ये नंबर 1 करेंगे. और नंबर 2 में करेंगे फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ द मोशन. दीज आर द 2 थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. और इसके लिए मैं स्टेप्स लिखा दे रहा हूं, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, आराम से बन जाएगा. तो क्या था, टू प्रूव अ मोशन टू बी SHM, एंड सेकेंड थिंग उस SHM का टाइम पीरियड. इसके लिए स्टेप्स क्या करना है. स्टेप में नंबर 1 में लिखो फाइंड restoring force. Find restoring force. कैपिटल F. देखना इसमें जरूर X रहेगा ही रहेगा, नहीं तो जानना कुछ भूल कर रहा हूं. इन टर्म्स ऑफ X. और अगर एंगुलर SHM हुआ माने एंगल करके घूम रहा है. कोई डिस्क ले लिए, यू टेक अ डिस्क, हैंग कर दो इसको. एक थाला ले लो, छोटी सी थाली, उसको थ्रेड से झुला के हैंग कर दो. नाउ थोड़ा सा टर्न करके छोड़ दो तो वो डिस्क ऐसा ऐसा करेगा. दिस इज ऑल्सो SHM. लेकिन ऐसा SHM नहीं है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे घूम रहा है. सो इन दैट केस वी विल एक्सप्रेस दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ थीटा. जब देखेंगे घूम रहा है, और जब देखेंगे मूव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ X. सो फर्स्ट काम हम लोगों का होगा रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है, जो कि इन टर्म्स ऑफ X होगा. फाइंड एक्सीलरेशन A. कैसे मिलेगा एक्सीलरेशन, जो फोर्स निकाले ना स्टेप 1 में, जस्ट डिवाइड दैट फोर्स बाय मास. बस क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन. फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे. जो एक्सीलरेशन निकलेगा वहां पे सारे चीजें जो भी एक्सप्रेशंस में आएंगे सारे कांस्टेंट्स होंगे. सो ऑल अदर क्वांटिटीज विल बी कांस्टेंट होगा ही होगा. देखो ना, प्रैक्टिस करेंगे अभी. विल बी कांस्टेंट अदर देन X या तो थीटा. थीटा और X को छोड़ देना, बाकी सबको बोल देना कांस्टेंट. अगर समझ में नहीं भी आएगा तो भी कांस्टेंट है. मतलब दे मस्ट हैव टू बी कांस्टेंट, नहीं तो SHM नहीं होगा बस. और अगर X नहीं रहा तो SHM नहीं होगा. फिर आई विल शो यू, ऐसा भी दिखेंगे कि SHM नहीं हो रहा. ओके. So A equals to force by mass. So there would be a constant part into X. यही लास्ट लाइन आने वाला है. और देखना साथ में एक नेगेटिव साइन आएगा. कैसे, बिकॉज दिस रेस्टोरिंग फोर्स जो है ना
एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स और थीटा, इसका ब्रैकेट में लिख के रखो विथ अ स्माइल विथ अ नेगेटिव साइन। ये जो फोर्स लिखेंगे, जब भी फोर्स लिखेंगे शुरू में माइनस बैठा दो, विथ अ माइनस साइन, शुरू में माइनस बैठा दो। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी सिर्फ लिख कर रखो। दीज आर द स्टेप्स, कभी भूल गए रिवीजन करना है, जस्ट गो थ्रू दीज स्टेप्स। अब मेक योर कैलकुलेशन, होगा ही होगा, जो भी हो जाए, बोर्ड लेवल, मेंस लेवल, नीट लेवल। लवंगो खाচ্ছি, गलाয় লেগে গেছে। ठीक है, चलो। तो नंबर 2 क्या है कि वी विल फाइंड एक्सीलरेशन, दैट इज द सेकंड टर्म। और नंबर 3 लास्ट पार्ट, वो क्या है? लास्ट पार्ट में टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय 2 पाई, न्यू फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, 12 तक चलेगी ये, 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन में तो माइनस साइन आ जाएगा, देखो फोर्स माइनस साइन समेत लिखेंगे तो एक्सीलरेशन में भी वो माइनस रहेगा फोर्स बाय मास करने से, तो रूट का अंदर नेगेटिव आ जाएगा एक्सीलरेशन, तो उसका मॉड डाल दो, मॉड, दैट मीन्स ओनली वैल्यू ऑफ दैट एक्सीलरेशन, माइनस साइन को छोड़ देंगे तब। तो ये हुआ टाइम पीरियड। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दे रहा हूं, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेस्टोरिंग फोर्स निकालना है, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है? एक्सीलरेशन निकालना है फोर्स बाय मास करके। स्टेप 3 में क्या करना है? टाइम पीरियड निकालना है, 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सीलरेशन। दीज आर द 3 स्टेप्स। हाँ, ध्यान में क्या रखना है? Whenever you write this restoring force, अगर मैं भी भूल जाऊं लिखने में, तुम लोग मत भूलना, क्या उसमें एक माइनस साइन बैठा देना, सो दैट एक्सीलरेशन में माइनस साइन आएगा और बाद बाकी जो भी आएगा सबको कांस्टेंट बोल देना सिवाय एक्स के। तो लाभ क्या है? ये कांस्टेंट बोल के एसएचएम कहां से प्रूव हो रहा है? हम लोगों का तो टारगेट क्या है? प्रूव अ मोशन टू बी एसएचएम। बिकॉज अगर ये कांस्टेंट हटा देंगे ना तो ये बन जाएगा ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में हम लोग सीखे थे कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम देखना लिखा हुआ है, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट। व्हाई? बिकॉज फोर्स इज, और एक बार रिविजन कर दे रहा हूं, फोर्स ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, वो जाते जाते किधर भी जाए पेंडुलम, फोर्स हमेशा किधर होगा? टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हिसाब करेंगे? अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। देखना लास्ट पिक्चर में भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखे अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन है, देखो अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसका एरो देखो, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, लेकिन फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑलवेज किधर होगा? टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो दोनों तो उल्टा हो गया, अवे और टूवर्ड्स। टू रिप्रेजेंट दिस ऑपोजिट डायरेक्शन वी पुट अ माइनस साइन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस डू 3 थ्योरीज रिलेटेड टू दिस, जो कि सिलेबस में डायरेक्ट है। तो थ्योरी नंबर 1, इस पोजीशन को लिखो x इक्वल्स टू 0, पेंडुलम को थीटा एंगल इधर टान के लेके आओ, सो दैट दिस एंगल इज थीटा। बस सही पिक्चर है। ये पेंडुलम का बॉब है, दिस हैज अ मास m, पेंडुलम बॉब हैज अ मास m, और ये लेंथ को बोलते हैं l। मैं साइड में दिखा रहा हूं, सेंटर ऑफ द बॉल से इसको बोलेंगे l, सेंटर ऑफ द बॉब टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको बोलेंगे l। पिक्चर ड्राइंग कंप्लीट। बोलो आगे जाबो।
कैलकुलेशन ठीक है चलो चलो কালারগুলো ভালো লাগছে না একটা অন্য কালার নিই চলো first thing is this draw this at this position when where you have taken the pendulum to the weight mg acts from there draw karo straight downwards and this position is any position say capital X any position capital X so any position should have any displacement this displacement would be how much say X any displacement okay now we have to draw two things number one is we have to resolve mg into two components तो इसको मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं एक बार देखो अरे वाह तो स्ट्रेट लाइन हो गया if this position is here and if mg is acting like this and if this angle is theta तो सोच के देखो इफ वी वांट टू रिजॉल्व mg इनटू टू कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट तो ऐसा हो जाएगा कौन सा एग्जैक्टली ये जो लाइन दिख रहा है इसका ऑपोजिट में ये जो लाइन दिख रहा है इसका ऑपोजिट में ये जो थ्रेड है थ्रेड का ऑपोजिट में एक ड्रॉ करना इधर उधर मत कर देना स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ एरो इन एनी डायरेक्शन ना इसका ऑपोजिट में ड्रॉ करना एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस तो एक एरो ऐसे करके ड्रॉ करो जस्ट ऑपोजिट टू दैट थ्रेड हो गया तो ये जो एरो है ये mg का एक कंपोनेंट है एंड ड्रॉ अनदर कंपोनेंट वो कैसा होगा दूसरा कंपोनेंट तो ऐसी होगी कि इसका साथ टेंजेंशियल हो लाइक दिस दैट इज ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इसको पहले मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे so that these two components are perpendicular ये दो कंपोनेंट तो ये ऐसी होनी चाहिए थोड़ा सा कार्व कर देता हूं may not be perfect अरे क्या हो रहा चलो ऐसे क्योंकि यही हम लोगों का हीरो है कौन ये ऐसा ड्रॉ कर लो एंड दिस लेंथ इज L दिस इज ऑल्सो L नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस try to understand these things ये समझने का कोशिश करो if this angle is theta this angle is also theta so this component would be mg cos theta and this component would be mg sin theta these are the two components mg cos theta and mg sin theta ड्रॉ करो mg cos theta and mg sin theta ड्रॉ कर लो now let me explain this देखो if you have drawn this I am going to erase some part of this क्या erase करूंगा देखो mg का बदले में तो दो कंपोनेंट्स मिला mg को erase कर रहा हूं चलो भाई mg जाओ हो गया तुम्हारा काम in place of mg there are two components एक है mg cos theta mg sin theta और ये थ्रेड में एक टेंशन एक्ट करेगा से F या तो ऐसे लिख रहा हूं T नॉट इज द टेंशन एक्टिंग हियर या तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं ठीक है छोड़ो T नॉट नाउ दिस टेंशन T नॉट इन द थ्रेड
एंड कंपोनेंट ऑफ द वेट mg cos थीटा विल बैलेंस ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बताओ व्हाट इज द इम्बैलेंस इन फोर्स, व्हिच फोर्स रिमेन्स नॉट बीइंग बैलेंस्ड, जिसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, mg sin थीटा। दैट्स व्हाई स्टेप नंबर 1 होगा रेस्टोरिंग फोर्स। कैपिटल F माइनस mg sin थीटा। माइनस mg sin थीटा, ये तो समझ में आ रहा है? माइनस साइन क्यों पुट किए? बता रहा हूं। अच्छा देखो, ये स्केल को ऐसे पकड़े। नाउ इफ आई रिलीज दिस, ये फिंगर को अगर मैं स्लो लूज कर दूंगा, ये तो ऐसे वापस आ जा रहा है। तो इसको इधर टान के कौन लेके जा रहा है? इसका mg का दो कंपोनेंट्स है, एक है mg cos थीटा जो कि अलोंग द लेंथ हो रहा है, और दूसरा हो रहा है mg sin थीटा। तो इट मूव्स अलोंग दिस mg sin थीटा। mg sin थीटा इसको टान के लेके जा रहा है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कौन सा फोर्स? रेस्टोरिंग। माइनस mg इंटू x बाई l। मतलब ये समझ में आया व्हाट इज x एंड व्हाट इज l? आई हैव जस्ट पुट साइन थीटा का बदले में x बाई l। इसका लॉजिक दे दो, लिखो एज थीटा इज स्मॉल। पहले हम लोग बोले थे कि इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड 4 डिग्री से भी कम, और ये तो एनी पोजीशन है, दैट मीन्स उससे भी कम होगा। सो इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, थीटा का बराबर हो गया। अदरवाइज ये भी समझ सकते हो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। अब ए फिजिकल टू आर थीटा जानते हैं हम लोग। फ्रॉम दिस थीटा होता कितना? एस बाय आर। यहां पे देखो, ये आर्क का लेंथ कितना है? एक्स। ये आर्क का लेंथ कितना है? एक्स। तो एस का बदले में क्या लिख सकते हैं? एक्स डिवाइडेड बाय आर। रेडियस कितना है इसका? इसका रेडियस कितना हो रहा है? एल। इट इज रोटेटिंग और मूविंग विथ अ रेडियस स्मॉल एल, तो एक्स बाय स्मॉल एल। वही लिखा हुआ साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, और थीटा का बदले में एक्स बाय एल। अदरवाइज यू कैन सी दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को देखो, इसको अगर नियरली स्ट्रेट लाइन मान लेंगे तो ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को यहां पे साइन थीटा डायरेक्ट ही लिख देंगे। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन? एंगल का ऑपोजिट साइड कितना है? एक्स। हाइपोटेन्यूज कौन? ये एल। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? एक्स बाई एल। दैट्स व्हाई साइन थीटा कितना लिख दिए? एक्स बाई एल। ठीक है। अदरवाइज साइन थीटा थीटा, थीटा माने एक्स बाई एल। ये है अंडरस्टैंडिंग पार्ट। ठीक है। सो फोर्स निकल गया विथ अ माइनस साइन। देयरफॉर सेकेंड स्टेप, एक्सीलरेशन ए कितना होता है? फोर्स बाय मास इक्वल्स टू फोर्स कितना? माइनस mg x बाई एल। मास कितना? m। कैंसिल करो। सो एक्सीलरेशन इज माइनस g बाई एल into x. So acceleration equals to minus g by l into x. From this, gravitational acceleration at a certain point, तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पे अगर मैं पेंडुलम लेके ऐसा ऐसा कर रहा हूँ तो इस जगह पे द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट एट अ सर्टेन प्लेस। स्मॉल g कांस्टेंट। लेंथ l of this pendulum, we assume while making a simple pendulum that the length of the simple pendulum is inextensible. मतलब its length cannot be more or less. Elastic नहीं है ये, fixed length है. So L is constant, G is constant. So the next line we can write A, constant हटा दो, equals to क्या बन जाएगा? Proportional to.
माइनस एक्स, प्रूव हो गया। तो इसका लॉजिक क्या देंगे, इसका लॉजिक लिखना, लॉजिक पार्ट कि एज G and L are constants, तो क्योंकि A proportional to minus x, therefore the motion is SHM। हो गया प्रूफ। बस these three lines, step 1 force with a minus sign mg sin theta, second acceleration force by mass m cancel, third x छोड़ के जो भी बचा सब constant, so a proportional to minus x, therefore the motion is SHM। a proportional to minus x माने SHM, and there is another term t equals to 2 pi, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 pi रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन का वैल्यू मॉड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट को कुछ मत करना, डिस्प्लेसमेंट तो एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू लास्ट लाइन में मिला उसको लिख देंगे। कौन सा क्या मिला, g बाई एल मिला इंटू एक्स मिला, साइन माइनस नहीं लेंगे, मॉड है। So x get cancelled, we get time period of SHM 2 pi root over L by G। Time period of a simple pendulum executing SHM is given by 2 pi root over L by G। एक प्रूफ हुआ। सिमिलर टाइप सेकेंड, फिर इसका डिटेल्स में जाएंगे, पहले बेसिक प्रूफ कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो देखो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, और ये पार्ट को लिखने का एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग इज दिस। बट यहाँ पे ना mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा जरूर ड्रॉ करना। mg कॉस थीटा होना चाहिए टेंशन जो होगा थ्रेड में उसका ऑपोजिट में, दिस इज mg कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो किसको लेंगे, सिर्फ mg साइन थीटा को लेंगे, क्यों, बिकॉज mg कॉस थीटा और टेंशन यहाँ पे जो होगा थ्रेड में वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। एनीवे चलो वन पार्ट कंप्लीट, सेकेंड एग्जाम्पल लो, नंबर 2, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग एंड ब्लॉक। स्प्रिंग और ब्लॉक अगर एक साथ रहेगा उसका मोशन भी SHM होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ड्रॉ करो, ऐसा, ये मान लो यहां पे था शुरू में मास है। नाउ this position, initial position is written as x equals to 0, displacement हुआ ही नहीं ब्लॉक का। now if you displace the block to another position, suppose यहां पे आ गया ब्लॉक, यहां पे ब्लॉक को कहां पे लाए, एक्सट्रीम पोजीशन में, यहां पे। So what has been the displacement of the block? Displacement of the block यहां से यहां तक, any displacement x, ये any position, but these displacements have to be small। एक चीज बता रहा हूं, SHM होने के लिए देख रहे हो तो angles have to be very small, so should be the displacement। डिस्प्लेसमेंट लार्ज हो जाने से दैट विल नॉट बी SHM। माने क्या है कि मान लो कि दिस इज अ पेंडुलम,
इसका मेन पोजीशन ये है. नाउ इफ यू टेक दिस पेंडुलम टू 90 डिग्री पोजीशन एंड देन रिलीज इट, तो ये तो ऐसे मूव करेगा, 90 डिग्री जाएगा, 90 डिग्री आएगा. एंगुलर एम्पलीट्यूड 4 डिग्री से बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये मोशन SHM होगा कि नहीं? तो दिस मोशन विल नॉट बी SHM. तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल इट बी? जाएगा आएगा तो ऐसे ही, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा मोशन का नाम क्या होगा? SHM तो नहीं होगा. तो ये मोशन का नाम क्या होगा? Who says this? This would be periodic motion. Periodic motion, but not SHM because it doesn't conform to the characteristics of SHM. So all periodic motions are not SHM. But all SHMs, SHM होने के लिए first condition was periodic must. So all SHMs are periodic, तो sure. Let us go back. So this displacement x has to be very small. माथा रखो. Okay. So let us see what happens. X is there. So if you stretch a spring to this position by x, तो spring क्या छोड़ के बात करेगा? Spring will try to bring it back. तो bring it back वाला force को ही हम लोग कौन सा force बोलते हैं? Restoring. That's it. So restoring force on the spring कितना होगा? If this spring has a spring constant k, we know a force acting on a spring if it is elongated by x is given by kx, and that kx would be in opposite direction to x. x किधर? इधर टान रहे हैं, वो वापस किधर आना चाहता है? इधर. So displacement x and the direction of restoring force are opposite. That's why minus sign. So start किससे करेंगे? Step 1 से. Restoring force लिखो. Restoring force minus kx हो गया. Second step, acceleration. कितना होता है? force by mass. That means minus kx by m. Third step क्या है? Third step was, इसका बाद लिखेंगे. Third step नीचे लिखिए. Third step is कि therefore a proportional to minus x. अरे बड़ी जल्दी आ गई. Yes, because k spring constant comma m mass of this block are constants. That's why constant हटा लोगे तो it will be proportional minus x. So यही है SHM का condition. So हम लोग बोल सकते हैं कि therefore the motion is SHM. समझ रहे हो? इसमें 3 मार्क्स. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए. जो स्टेप्स लिखा है तो वही फॉलो कर रहा हूं. ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 से ये निकला. एंड द लास्ट स्टेप इज इफ यू आर आस्क्ड, और बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा. इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड टाइम पीरियड t equals to, फॉर्मूला लिखो, 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट x बाय एक्सीलरेशन का सिर्फ वैल्यू पर. 2 पाई रूट ओवर, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, m बाई के. m by k, 2 pi root over m by k. Very helpful formula. You will require this lot of times. Yeah. Now we will be doing the third part. Another thing. उसके लिए heading दो. If an endless tunnel is dug through
द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर से टनल बना दिया। जो कोशिश किए थे कहाँ पे, इजराइल, गाजा, ये सब में तो वही यही एक्सपेरिमेंट करने गए थे। अब द थिंग्स टर्न्ड अगली, वो बात अलग है कि युद्ध छिड़ गया। बाकी मेन फिजिक्स का यही एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि टनल बनाए कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ का अंदर से, थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। और उसका बाद एंड अ मास, हमास नहीं, अ मास ऐसा बोल रहा हूं मैं, एंड अ मास इज रिलीज्ड। तो क्या होगा, एंड अ मास इज रिलीज्ड, वो SHM करेगा। हाउ, लेट अस डू दैट। तो लिखे ना, इट परफॉर्म्स, लिख कर रखो कहीं पे, इज रिलीज्ड, इट एग्जीक्यूट्स SHM। इसका प्रूफ करेंगे, चलो विल डू द प्रूफ। ठीक है, कैसे, इसके लिए तो टनल बनाना, पहले अर्थ बना लेते हैं। ओह व्हाट अ ड्राइंग, व्हाट अ ड्राइंग। चलो अर्थ बन गया। अर्थ का अंदर एक टनल बनाएंगे। तो टनल तो ऐसे बनाना पड़ेगा, सीधा ऊपर से नीचे तक, ऐसे। बन गया टनल, एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। ओ बन गया ये। टेक अ मास, कोई एक मास को ले लो, जैसे कि ये मास को ले लेते, दिस इज अ मास, से स्मॉल एम। ओ ये तो टनल के अंदर से जाएगा नहीं, बहुत बड़ा मास हो गया, छोटा मास लेता हूं। दिस मास इज रिलीज्ड, रिलीज माने इनिशियल स्पीड 0 होगा। सो इफ अ मास m इज रिलीज थ्रू अ टनल, तो अर्थ का रेडियस, वैसे मैं ग्रेविटेशन में तुम लोगों को बोला था, वेन एवर यू टेक अर्थ और कंसिडर अर्थ टू बी, ऐसे बोले थे, एक लाइन लिख लो, लेट अर्थ हो गया। नो, ये मास को जैसे छोड़ देंगे, ये आते आते टाइम विल कम व्हेन दिस मास रीचेस अ सर्टेन डिस्टेंस। यहां पे आ गया मास। याद रखना, इसको याद रखना एग्जाम हॉल में। इफ यू डोंट वांट टू बी पजल्ड, एग्जाम हॉल में ये याद रखना, SHM में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आर कंसिडर्ड फ्रॉम व्हिच पॉइंट? Displacement of a particle executing SHM is considered from which point? Top, bottom, middle, बोलो? Mean position, very good. Yes, from mean position. तो ये अगर SHM करेगा ऐसे, तो इसका mean position कौन होगा? Center. So exam hall में ये याद रखना, the distance of this particle at any position, ये फिर से any position है, any position, capital X. This mass is now on an or above an imaginary sphere. एक imaginary sphere सोच लो. This mass is above an imaginary sphere of radius x. तो सोच लो अर्थ है ही नहीं, मतलब पूरा अर्थ नहीं है, but in place of that we have a part of earth that has radius x now. छोटा हो गया अर्थ, उसका मास कितना? x. So स्टार्ट करो यहां से आंसरिंग, नहीं तो लेट द पिक्चर बी लाइक दिस। पिक्चर ड्रॉ हो गया, पिक्चर ड्रॉ करो नीचे। नाउ फ्रेश करके कर रहा हूं। स्टेप 1 में ये होना चाहिए, रेस्टोरिंग फोर्स
ऑन द मास, मास का ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स, F कितना होगा? डोंट फॉरगेट टू गिव अ माइनस साइन। व्हाई? यहां पे देखो और इजी लगेगा। बोलो ये मास को अर्थ किधर टानेगा, ऊपर का तरफ ना नीचे? नीचे, सेंटर का तरफ। तो इट्स फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पिंक बॉल वुड बी डाउनवर्ड्स, टानेगा नीचे, बट डिस्प्लेसमेंट किधर लिए है? अपवर्ड्स। देखो डायरेक्शन ऑलवेज आर ऑपोजिट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, उसलिए माइनस साइन लेना है। फोर्स कितना मालूम है हम लोगों को? G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, फॉर्मूला पहले लिख लिया। नाउ वी आर पुटिंग वैल्यूज। G m1 तो पिंक कलर का बॉल था, उसका मास कितना था? स्मॉल m। कहीं पे लिखा हुआ है स्मॉल m? हाँ लिखा हुआ है जे स्मॉल m। तो G m1 हो गया। अब m2 की बारी। m2 ऐसा लिख रहा हूं मैं, 4/3 पाई एक्स क्यू रो ये है m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो कोई ऐतराज है कि नहीं? ऐतराज, कोई शक वाली बात, कोई सवाल, एनी डाउट? ये तो 8 था, टोटल मास तो m था, बट अभी हम लोगों का ऑब्जेक्ट कहाँ है? हीरो कहाँ है? हीरो तो सिर्फ इतना रेडियस वाले एक स्फीयर का ऊपर है। चले इसका मास जो होगा वो m2 है यहाँ पे, एंड दैट m2 वुड बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब का बदले में x क्यूब इनटू इसका डेंसिटी। यही तो फॉर्मूला है मास का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में, देखो। साइड में कर देता हूं। ठीक है। सो दिस गिव्स अस, फ्रेश करके लिखता हूं। सो फोर्स वाला लाइन मिल गया, नेगेटिव कैपिटल G स्मॉल m 4/3 पाई रो, और G तो है ही, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ऊपर में एक्स क्यू, एक एक्स बचेगी इंटू एक्स। ये मिल गया, ये मिल गया। ये सब कांस्टेंट पार्ट है, देखो मैं ब्रैकेट में लिखा हूं, ऑल आर कांस्टेंट्स। एंड रिमेंबर इन ग्रेविटेशन आई हैड टोल्ड यू कि 4 कांस्टेंट्स ना एक साथ रखना। कहां पे? जब डेप्थ वाला केस किए थे ग्रेविटेशन में, बोला था मैं। ठीक है कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, फिर बार बार बोलते बोलते देखना, यू विल रिमेंबर दैट। कैसे? फोर्स तो इतना हो गया, एक्सीलरेशन देखो, नेक्स्ट है फोर्स बाय मास स्मॉल m, जिसको छोड़ दिए थे पिंक बॉल उसका मास। तो इसको स्मॉल m से डिवाइड करने से ये स्मॉल m कट जाएगा, तो कितना बचेगा? -G 4/3 पाई रो। दीज वर द 4 कॉन्स्टेंट्स आई हैड टोल्ड यू टू रिमेंबर। तो जब एग्जाम हॉल में करोगे डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये चारों याद रखने बोले थे कि एक साथ रहता है, देखना एक साथ रहता है ये चारों, वी विल सी दैट। ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एक्सीलरेशन। अब बताओ, एक्स छोड़ के सारे टर्म्स क्या कांस्टेंट्स है? यस, कैपिटल G कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एंड एवरेज डेंसिटी बोला था रो को। देखो रो वाज सेड टू बी एवरेज डेंसिटी। कोई भी चीज का एवरेज माने तो फिक्स्ड कांस्टेंट, दैट्स व्हाई रो इज आल्सो कांस्टेंट। सो वी कैन राइट इन नेक्स्ट लाइन कि देयरफॉर A प्रोपोर्शनल टू -x। अरे ये ऐसे जम करेगा क्यों? लॉजिक दे दो, एज G 4/3 पाई रो आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। देख रहे हो, सेम टाइप, सिमिलर टाइप चल रहा है। अभी इजी लगेगा। तो ये कॉन्स्टेंट्स है, देयरफॉर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर द मोशन इज SHM। हो गया प्रूफ, 3 मार्क्स। क्या लिखना पड़ा? सिर्फ फोर्स, एक्सीलरेशन एंड देन A प्रोपोर्शनल टू -x। हो गया। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। नाउ लास्ट पार्ट रिमेन्स, दैट इज 1 मार्क्स और देता है, बोलता है इसका टाइम पीरियड निकालो। टाइम, हाँ बोलो।
এর লাস্ট পেজটা? না না স্যার এইটা। আচ্ছা ঠিক আছে, জানতাম আমি। হ্যাঁ স্যার। ওই যে আচ্ছা ঠিক আছে, চলো নেক্সট পেজ। তাহলে टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सीलरेशन का वैल्यू, सो इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट को कुछ मत बोलना, वो तो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, एनी वैल्यू है ना, एक्स एक्स ही रहेगा। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आया था? वो चार बदमाशों बोल रहा हूँ, चार कॉन्स्टेंट्स जी 4/3 पाई रो आ गया, चार कॉन्स्टेंट्स इनटू एक्स, यही तो आया था। माइनस साइन मत देना, मॉड दे देना, वैल्यू सिर्फ लेना। सो दिस इज द टाइम पीरियड। बहुत खराब आया आंसर, उसमें कितना अच्छा आया था, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, एम बाई के मैंने मक्खन, एम के, कितना इजी था फॉर्मूला। 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, कितना अच्छा था। ये है कहाँ पे आ गया, 2 पाई एक्स एक्स कट गया, जी 4/3 पाई रो। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करो, लिखो वी नो, और अगर मालूम नहीं होगा लिखना वी डोंट नो, पर लिख के आना। स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन सीखे थे ग्रेविटेशन में, इसी का बात कर रहा था, और वो ऐसा था, वो 4 कॉन्स्टेंट्स थे, जी 4/3 पाई रो इनटू एक्स आया था। ये जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी का रिलेशन है, वी डिड दिस फ्रॉम ग्रेविटेशन। यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट? अच्छा ये एक्स एक्स ना लिख के इसको लिखना रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज ग्रेविटेशन कर रहे हैं तो वहां पे रेडियस ऑफ अर्थ था। एक बार मैं दिखा दे रहा है, देखो ये याद आ रहा है, जनरल मैनेजर बाय आर स्क्वायर याद आ रहा है। अब अर्थ का मैनेजर का एम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी रो, हो गया मास, ये पार्ट मास हो गया, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का पहाड़ा याद है, आर स्क्वायर आर 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 क्यू। सो ये कितना हो गया, देखो जी 4/3 पाई रो, ये चारों एक साथ इंटू कौन आ गया बाहर, आर। याद आ रहा है ग्रेविटेशन? तो तब ग्रेविटेशन का थ्योरी में ये इतना एक पेज लेके किए था, अभी कैसा लग रहा है, एक लाइन में हो जा रहा है, पूरा फिजिक्स ऐसा लगेगा धीरे धीरे, बस थोड़ा पेशेंस रखो। तो एनीवे इसको डिलीट करते हैं, तो यहां पे मैं वही लिखा जी इक्वल्स टू वह। सो इफ आई रिप्लेस दिस देयर, इफ आई रिप्लेस इट देयर, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि देयर फॉर टी इक्वल्स टू 2 पाई, ऊपर में तो कट गया 1 है, और नीचे ये ब्रैकेट का बदले में क्या लिख सकता हूं बोलो तो, इन प्लेस ऑफ दिस ब्रैकेट वी कैन रिप्लेस इट बाय जी बाय आर इक्वल्स टू दिस ब्रैकेट पार्ट। दैट मीन्स, अच्छा अब अच्छा आ रहा है रिजल्ट, देखो 2 पाई ये उल्टा हो गया, रूट ओवर आर बाई जी। दैट मीन्स इफ यू रिलीज अ बॉल through the tunnel dug inside earth r par, माना r से पार तक, लिमिट लोअर लिमिट r, अपर लिमिट पार, r पार वाला अगर लोगे टनल तो इट विल बी परफॉर्मिंग SHM। लिखो नंबर 1, टाइम कितना लगेगा वो देखना चाहता हूं। तो कौन सा ऐसा रिलेशन है जो डिस्प्लेसमेंट का साथ टाइम का रिलेशन बताता है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। वन आइडिया पार्ट बता रहा हूं, वेन एवर यू फाइंड ओमेगा इनसाइड एन एंगल, जैसे साइन ऑफ ओमेगा टी माने साइन ऑफ एन एंगल, ओमेगा को इससे रिप्लेस कर देना तो सुविधा होगा, ठीक है। लेट अस सी दिस, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कहां तक पहुंच गया पार्टिकल, a/2। सो इफ वी प्लेस a/2 इन प्लेस ऑफ x, इट वुड बी a sin ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी into the time small t. From this a and a are cancelled, left side में बचा हाफ, so half equals to sin
2π/t इंटू स्मॉल टी माने ओमेगा टी। अच्छा, हाफ माने साइन कितना डिग्री होता है? हाफ माने साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे कैसे? π/6। साइन 30 डिग्री साइन π/6 इक्वल्स टू साइन जो है वही लिख दो 2π/t इंटू स्मॉल टी, जो है वही लिख दो 2π/t इंटू स्मॉल टी। दोनों साइड का साइन साइन हटा दो, दोनों साइड का साइन थीटा इक्वल्स टू साइन फाई। जनरल इक्वेशंस किए हो तो फर्स्ट वैल्यू कौन सा इक्वल होता है? जस्ट द वैल्यूज गिवन हियर, या तो मल्टीपल वैल्यूज। जनरल सॉल्यूशंस किए हो तो हम लोगों को उतना नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, वैल्यूज इक्वल कर दो। π/6 2π/t इंटू स्मॉल टी। पाई cancel, we get capital T equals to small t equals to capital T by 12। देखो 6 2s कितना हो रहा है? 12। तो कैपिटल T by 12 T/8 नहीं हुआ, T/12 हुआ। सो माने क्या हुआ? माने इफ दिस इज द पोजिशन ऑफ द पेंडुलम बॉब एंड इफ दिस इज द एक्सट्रीमिटी, दिस वाज x इक्वल्स टू 0, t भी कितना था? 0। स्टार्ट किया था, ये पोजीशन कौन सा है? x इक्वल्स टू तो a है, और t कितना लगा? t/4। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट वाज हाफ, दैट मीन्स यहां पे x कितना है? हाफ द डिस्प्लेसमेंट इन एनी वन डायरेक्शन, कितना? a/2। तो टाइम कितना लगा? 0 और t/4 का मिडिल टाइम t/8, ऐसा नहीं हुआ, t/12 लगा। कैन एनीवन से व्हाई इज दिस टाइम नॉट बीइंग t/4? हाँ, समझ में आया फॉर्मूला करके t/12 आ रहा है, बट t/8 क्यों नहीं हुआ? कोई लॉजिक क्या है? मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज, अगर कोई सेम स्पीड से जाता है तो क्या फॉर्मूला होता है? s इक्वल टू vt, देन रास्ता हाफ तो टाइम भी हाफ होगा। पर SHM में s vt नहीं होता है, s कितना होता है? साइन का फंक्शन होता है। तो साइन टर्म कॉस टर्म हाफ डिस्टेंस में हाफ नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज नॉट t/8। ये कितना हो गया? t/12। माने को समझो, द थिंग इज दिस टाइम टेकन इज t/12, टोटल टाइम टेकन इज t/4। सो बाकी का रास्ता जाने में उसको टाइम कितना लगेगा टू रीच द एक्सट्रीमिटी? t/4 टोटल माइनस t/12, और ये टाइम कितना हो जाएगा? t/6। वेरी गुड, दिस टाइम वुड बी t/6। तो if a particle executing SHM moves from a distance 0 to half, then time लगा t1, half to the rest of the path, then time लगा t2। तो t1 is to t2। IIT में आया है, मेंस में आया है, नीट में आया है, बोर्ड एग्जाम में तो यू कैन वेल एक्सपेक्ट दिस वैल्यू। t1 is to t2, t/12 is to t/6, कितना हो जाएगा? 1:2। अब जनरल स्टूडेंट क्या करता है? बस फॉर्मूला जान गया, वैल्यूज याद है, सीख गया। नहीं, थोड़ा विजुअलाइज करो। एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन से समझो। एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू x है। हाँ, माइनस है, ठीक है, माइनस माने ऑपोजिट डायरेक्शन में, वैल्यू प्रोपोर्शनल टू x। इसका माने एज x इज इंक्रीजिंग, x जितना बढ़ेगा इसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा, और माइनस साइन का माने क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स इसका रिटार्डेशन बढ़ेगा। दैट मीन्स
ये जितना इधर जाएगा स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा और फास्ट स्लो हो जाएगा। तो स्पीड ज़्यादा, मैक्सिमम स्पीड होता है कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम। बाद में देखेंगे हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी। नाउ इट स्लोज डाउन, स्लोज डाउन, स्लोज डाउन। तो हाफ रास्ता जाने में जितना टाइम लगेगा, अब तो ऑलरेडी बहुत स्लो हो चुका है आफ्टर रीचिंग हाफ पॉइंट। अब तो शुरू ही स्लो से हो रहा है, तो बाकी का रास्ता, सेम रास्ता, बाकी का आधा रास्ता जाने में और ज्यादा टाइम लगेगा। देख रहे हो, 1:2 माने फर्स्ट हाफ जाने में जो टाइम लगा, सेकेंड सेम हाफ रास्ता जाने में उसका डबल टाइम लगा है। दैट्स वाई द टाइम डिडंट बिकम t/8। कितना हुआ? t/12 फर्स्ट पार्ट, और रेस्ट पार्ट t/6। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो एक सम मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं। लिखो, अ पार्टिकल executes SHM following x equals to a sin omega t। दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फॉलोइंग x equals to a sin omega t। ठीक है, और दिया हुआ है इसका टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स। जो पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, साइड में एक आइडिया वाला बात लिख दो, इसे बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। If we find that a pendulum has time period 2 seconds, then we call this a seconds pendulum। माने, इसका माने है कि किसी एक साइड में जाने में इसको 2 सेकंड लगे, माने सॉरी, टोटल मोशन करने में 2 सेकंड लगेगा, जाना प्लस आना, तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। दैट्स वाई इसको बोला जाता है सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम अगर हुआ, इसका टी कितना हुआ? 2 सेकेंड्स। तो अगर फॉर्मूला बैठा देंगे t इक्वल्स टू 2 पाई √L/g, सोच के देखो g का वैल्यू कांस्टेंट है, तो 2 इक्वल्स टू 2 पाई √L/g लिख सकते हैं हम लोग। t का बदले में 2 बैठा दिया और कुछ नहीं। दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड, सो फ्रॉम दिस वी फाइंड L इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। देन इट नियरली बिकम्स इक्वल टू 99.3 सेंटीमीटर, माना 0.993 मीटर। नहीं, 99.8। तो कभी कभार एमसीक्यू में मिलता है लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ कितना होता है? 4 ऑप्शंस आर गिवन। याद रखने का टेक्निक, नियरली 1 मीटर। तो चलो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM फॉलोइंग x इक्वल्स टू a sin omega t, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, पिक्चर दे दिया है, कितना आसान है, देखो पिक्चर भी दे दिया है। पार्टिकल यहां से शुरू किया और यहां तक गया। अरे दोनों साइड तो अनइक्वल है। हाँ, अनइक्वल ही है, बिकॉज दिस इज x इक्वल्स टू 0। ये रास्ता जो है x इक्वल्स टू एक्सट्रीमिटी है, और ये रास्ता जो है, ये रास्ता, ये x इक्वल्स टू ऐसा है। सो P, O और Q। तो क्वेश्चन क्या है? सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच Q फ्रॉम P भाया O। बस में लिखा हुआ रहता ना भाया दिस, वैसे भाया O होके P से Q जाने में इसको टाइम कितना लगेगा? हु सेज दिस? हाफ रास्ता a/2, यहां से इसको वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? t/12। और बाकी इस साइड में कितना जाना है? पूरा जाना है। पूरा जाने में कितना टाइम लगता है? t/4। जस्ट लेट अस फाइंड टोटल टाइम बाय एडिंग दीज टू। हाफ रास्ता t/2। हाँ,
and then one side complete रास्ता t by 4, just add them. ये कितना आ रहा है देखो, t by 4 माने 3t by 12 और ये t by 12, that is 4t by 12. The answer is t by 3, and as t is 2 seconds, so time taken would be 2 by 3 seconds. Very good sum to understand from. Next, let us go to velocity. Displacement. There is another thing. There is another thing. This is the mean position, x equals to 0. And a particle starts from here, माने t equals to 0. Now the particle is moving, executing SHM, ऐसे ऐसे करके. तो इसका इक्वेशन x equals to a sin omega t होता है. ये हम लोग जानते हैं, बट स्टार्ट कहां से होगा, हिसाब कहां से शुरू करेंगे, t equals to 0 यहां पे. इफ यू फाइंड अ मोशन लाइक दिस, t equals to 0 में पार्टिकल यहां पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी या तो नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, मतलब एक पेंडुलम है, उसको टान के यहां पे लेके आए, पकड़ के रखे हो. नाउ यू रिलीज इट एंड नाउ इट इज परफॉर्मिंग SHM. तो t इक्वल्स टू 0 में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था ना, a था, a. तो तब इसका डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन बाय a sin ओमेगा t. मतलब इससे भी ऐसा कर दो, then its equation is given by x equals to a cos omega t. For an example, x equals to, suppose दिया हुआ 5 sin 100 pi t. ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड a कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ए वेरिएबल टर्म छोड़ के कितना बचा, 5. कितना इजी है, ऐसा सम आएगा 3 मार्क्स दे देगा वो. ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा चेंज करके. कैसे, x इक्वल्स टू 3 प्लस 6 cos ओमेगा t. इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, if this is x-axis and this is y-axis, y-axis में डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं और जो x-axis है यहां पे लिख रहा हूं टाइम. Why? Because the variables are like that. Variables वही है. ये तो देखो, टाइम और x, these are the variables. So इसलिए यहां पे टाइम x-axis में और x y-axis में लिखे. Now how should the graph look like? एक कांस्टेंट वैल्यू देखो दिया हुआ है 3, इसको कांस्टेंट वैल्यू ले लिया 3. Along that constant value, parallel line ड्रॉ कर दो. ऐसे ड्रॉ कर दी पैरेलल. With respect to this, ये कॉस का ग्राफ है. कॉस का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से ना, ऊपर से ना नीचे से, माना टॉप बॉटम ना 0. টপ থেকে কত, টপ থেকে স্টার্ট হবে, হ্যাঁ কত, দেখো তুমি যেটা ভাবছো ভুল বলোনি, লজিক অনুযায়ী ঠিক বলেছো, কিন্তু এখানে ম্যাথমেটিক্যালি ঠিক বলছো, ম্যাথমেটিক্যালি, কিন্তু এখানে মানেটাকে দেখো. আমি পিকচারটা ড্র করি. 3 থেকে 6 ওপরে যাচ্ছে এইখানে, এই 3 এর রেসপেক্ট, তাহলে এটা কত হবে, 9.
3 থেকে 6 नीचे एसो, ऊपर में 6 चलो और नीचे भी 6 आओ, ये बोल रहा हूं। 3 से और 6 ऊपर 9, 3 से और 6 नीचे कितना होगा? -3। हो गया। इसका बीच में ये SHM करेगा ऐसे। दिस वुड बी द ग्राफ। जिसका मैथ्स नहीं है थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं आइडिया बता दे रहा हूं। टेढ़ा होएगा जय हो। मैथ्स नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा। ভেরিয়েবল পার্টকে এটা ভেরিয়েবল পার্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 6। ठीक है, अब देखो इसको लेके जा रहा हूं, ओरिजिन को देखो। ये कॉस का ग्राफ है, नो प्रॉब्लम। ये रहा कॉस का ग्राफ, मैक्सिमम से स्टार्ट, ये कॉस का ग्राफ। ठीक है, ये है कॉस का ग्राफ। नाउ इफ आई मूव दिस ग्राफ अप बाय सम अमाउंट, सपोज इसका एम्पलीट्यूड है 6, माने 6 ऊपर 6 नीचे, 6 प्लस 6 माइनस, 6 ऊपर 6 नीचे। अब इसको मैं अगर 3 ऊपर शिफ्ट कर दूं तो कैसा दिखेगा ग्राफ? इफ आई शिफ्ट इट 3 ऐसे, ये लो 3 शिफ्ट कर दिया, ये दिखेगा ग्राफ ऐसे। तो इसका जो सिमेट्री लाइन था, जिसका ऊपर 6 ऊपर 6 नीचे हो रहा था, वो भी ऊपर उठ जाएगा। दैट मीन्स दिस। इसका रिस्पेक्ट में ये 6 ऊपर जा रहा है और 6 नीचे भी आ रहा है। 6 ऊपर जा रहा है, 6 नीचे भी आ रहा है। तो दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स ऑसिलेशन, ग्राफेर मैक्सिमम वैल्यू ना। सो इसका आंसर बताओ। यू विल वेरी ऑफन फाइंड दिस इक्वेशन। सपोज SHM ऐसा, x का बदल में y, एक ही बात है, a प्लस b साइन ओमेगा t। क्वेश्चन नंबर 3, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन बाय SHM कितना है? Yes, right answer. B. Answer is B. A and B are constants. और इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा? टाइम, डिस्प्लेसमेंट, we will move A up. क्यों? A कांस्टेंट है, शुरू में प्लस A, तो we will move A up. चले गए? Very good. Yes. A minus B. If A is greater than B. Now the graph will look like this. B up and B down. ऐसे ड्रॉ कर लो इसको, आंसर लिख लो। लिखो y इक्वल्स टू A, एक कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या एंगल है, प्लस B अनदर कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, साइन कॉस एक साथ, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। एंड दोज हु हैव मैथमेटिक्स हैव ऑलरेडी डन दिस इन मैथ्स। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? हु विल आंसर दिस? ए भी है, बी भी है, तो व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड?
plus b. No, not a plus b. It would be root over a square plus b square. Okay, so answer लिख के रखो. Then I'll explain this. Answer is root over a square plus b square. Amplitude, amplitude. Bracket में लिखो amplitude. Sir, is it like component? I'm showing this. I'm showing this. चलो, let us write this as this. इसको ऐसे लिखो. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन. थोड़ा सा मैथ्स है भाई. अगर किसी का मैथ्स नहीं है, नो प्रॉब्लम. इसको नहीं करना है, सिर्फ आंसर को याद रखना है, काम चल जाएगा. अदरवाइज इसका मैथ्स है, ये करो. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन नो. देन ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया. साइड में साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, प्लस इधर कौन है, बी है. यहां पे भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन जाएगा ना, रूट ओवर, तो नीचे कर देते हैं. बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी. अच्छा, ऐसा कुछ बोलो तो कि हम लोग ऐसा कर पाए कि वी कैन डू दिस लाइक दिस. साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, किसी को मालूम है? साइन ऑफ ए प्लस बी. ये थोड़ा हायर लेवल फॉर्मूला है. ठीक, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. वी वांट टू अप्लाई दैट थिंग हियर. वी वांट टू अप्लाई द सेम थिंग हियर. तो वी फाइंड साइन ओमेगा टी हियर. सो लेट अस कॉल इट कॉस ए बी ना बोल के अल्फा बीटा कुछ बोल देते हैं. तो लेट अस कॉल दिस ब्रैकेट पर साइन है तो इसको कॉस बोल देता हूं, कॉस अल्फा. सिमिलरली वी फाइंड कॉस हियर, तो इस पार्ट को बोल देते हैं साइन ऑफ समथिंग. समथिंग क्या, वही अल्फा. ऐसे बोल देने से हो जाएगा. कल से मैं बोलूंगा मैं मोदी हूं तो मैं मोदी बन जाऊंगा. अब बोथ द मोदीज आई एम टॉकिंग अबाउट. एनीवे, ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू शो दैट. कैसे? किसी एक को वी कैन एज्यूम, लाइक देखो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं. कैसे? a बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर कॉस अल्फा मानेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, इसको अल्फा लिखेंगे. अब कॉस माने क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो इसका ऊपर में जो है उसको बेस में लिख देते हैं, बेस, और नीचे जो है हाइपोटेन्यूज में लिख देता हूं. अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर कितना होगा फिर. इफ द बेस इज a and hypotenuse is root over a square plus b square, what would be? B. Yes. Yes, B. Tough, no, easy. It is B. And now if it is B, can we find sin alpha from here? ये तो cos alpha पकड़ के ट्राइंगल बना है, तो यहां से sin alpha कितना आ रहा है? एंगल का ऑपोजिट साइड B, ये परपेंडिकुलर है. B डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अरे वही है ये, B बाय रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट्स व्हाई वी हैव एज्यूम्ड इट टू बी sin alpha. तो अगर ऐसा एज्यूम कर लेंगे तो रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है. एक लाइन लिख ही लो. चलो एक लाइन लिख लेते हैं. इसका बदले में लिखता हूं कॉस अल्फा, और बाकी ये साइन ओमेगा टी है, रहने दो, प्लस ये जो है इसका बदले में लिखेंगे साइन अल्फा. बाकी साइड में कॉस ओमेगा टी है, रहने दो. सो नाउ व्हाट वी गेट, हाँ मिल गया, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा. ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है. सो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ, एक एंगल ओमेगा टी वाला है और दूसरा एंगल अल्फा वाला है. ये तो आ गया. बट इन द क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट में कहीं पे भी अल्फा नजर नहीं आ रहा. सो आएगा कैसे? वी हैव एज्यूम्ड दिस एंगल टू बी कॉस अल्फा. तो कोई तो इसको कॉस बीटा, कॉस गामा कुछ भी ले सकता है, एंगल का नाम कुछ भी दे सकता है, थीटा. दैट्स व्हाई you should define alpha. That means you should say what alpha you have taken for. तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख दो, ये जो लास्ट लाइन आया इसका ब्रैकेट में लिख दो, where ये ट्राइंगल से बहुत छोटा सा एक चीज आएगा. इफ यू फाइंड tan alpha, b divided by a, perpendicular by base, where tan alpha is b by a. हो गया. अब फॉर दोज हु डोंट हैव मैथमेटिक्स, वो कैसे करेगा इसको?
उसके लिए मैं तो बोल दिया सिंपल शॉर्टकट ये करना, और जिसका मैथ्स है वो भी करना, ये वो भी करना। अगर देखोगे 1 मार्क्स दे रहा है और नीट में आ गया, मेंस में आ गया, तो टाइम सेव करना, एमसीक्यू, तो वही करना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ इसका कितना होगा एम्पलीट्यूड? आई होप यू हैव रिटन दिस। सीखो, आई डोंट वांट यू जस्ट लर्न द शॉर्टकट्स। शॉर्टकट से जिंदगी नहीं चलता है। हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, तारपर शॉर्टकट, हार्ड वर्क देन स्मार्ट वर्क। मैं तो बोला हूं डायलॉग। इसका बताओ, y इज गिवन एज साइन पाई बाई 6t प्लस 2 cos पाई बाई 6t दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड कितना है इसका? बोलो जल्दी, शॉर्टकट लगाओ। एम्पलीट्यूड कितना? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, दैट्स इट, √5। देख रहे हो, सेकेंड्स लग रहा है आंसर करने में, वो भी नहीं। तो वो था हार्ड वर्क, ये है स्मार्ट वर्क। अब एम्पलीट्यूड है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ चीजें होती है लाइफ में, दिखती नहीं है पर है। लाइक डे टाइम में चांद दिखता नहीं है पर वो होता है, वैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं तो बोला हूं जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? 1 होता है। तो दैट मीन्स इसका a माने 1, इसको a का साथ कंपेयर करो। इसका तो दिया हुआ है, इसका b माने कितना? 2। So a is 1, b is 2, and we know the formula root over a square plus b square √5. Yes, that is the answer. वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला था। एक तो था a ओमेगा, आई टोल्ड यू टू सी दैट, a ओमेगा ब्रेक टाइम दिया था मैं, cos ओमेगा t. This was one form. When you want to find velocity in terms of time, टाइम दिया होगा कि 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा, देन सिलेक्ट दिस फॉर्मूला। और या तो अगर देता है कि नहीं, जब मीन पोजीशन से ना वो 4 सेंटीमीटर दूर है, माने x का वैल्यू दिया हुआ है, तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। सो x का वैल्यू गिवन, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, देन x रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी का, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेलोसिटी। दिस द सेकेंड फॉर्म, ये ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? साम लिखो, आंसर बताओ झटाझट। ऐसे ही बहुत मजेदार है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए बस, वो हम लोग करेंगे। क्या है उसमें? चलो 8। सो v इक्वल्स टू, तो उससे पहले मैं ये बोलना चाह रहा था, ओमेगा x कितना दिया हुआ है? 0, 4 पाई হয়েছে। আর সেকেন্ডেরটা কি হচ্ছে? a स्क्वायर भी 4 स्क्वायर और ये भी 4 स्क्वायर। नेक्स्ट सम, ऐसा करो, वेलोसिटी तो हुआ, अब लिखो, उसी को कंटिन्यू करो, लिखो व्हाट, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो CONTD लिख दो, कंटिन्यूड, वही सम कंटिन्यू हो रहा है।
ये क्वेश्चन बनाओ। t इक्वल टू 2 पाई सेकंड्स बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, पाई माने कितना है 3.14 जो है। इसको देखो वेलोसिटी, इसको देखो टाइम, हाँ कह दो 4 पाई। अच्छा लेट अस सी दिस वेलोसिटी और टाइम 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो v इक्वल्स टू ए ओमेगा। अब ना हम लोग ना और टाइम वाला फॉर्मूला लेंगे, कॉस ओमेगा टी वाला। ए वाज गिवन हाउ मच 4, ओमेगा वी फाउंड टू बी पाई, देन कॉस। याद करके देखो इस पेज में मैं बोला था, वो पेज में जा नहीं रहा हूं। Whenever you find ओमेगा इन एन एंगल एंड यू सी कि नहीं मुझे कुछ वैल्यू निकालना है तो क्या बता करना है, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लगाना है। लेकिन यहां पे हम लोग ऑलरेडी ओमेगा करके रखे हैं कि ओमेगा का वैल्यू पाई आया था, 2 पाई बाय टी करके तो पाई आया था। अच्छा इनटू टाइम, टाइम कितना बोला, ओह टाइम तो 2 पाई दिया हुआ है, टाइम तो 2 पाई दिया हुआ है। ओ नहीं तब वी विल कीप दिस, नो प्रॉब्लम। 4 पाई cos 2 pi square. So this would be the answer. We don't know the value of this. Answer it is. This will be the answer. This is the answer. Always, it is not mandatory that you find a value with some numerical value. ऑप्शन में भी ऐसा ही रहेगा, और अगर बोर्ड एग्जाम में आया, स्कूल एग्जाम में आया तो ऐसे ही छोड़ देना, नो प्रॉब्लम। वेलोसिटी का दो सम किए तो काइनेटिक एनर्जी। ईशा बताओ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टाइम दिए थे याद रखने के लिए। ना 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 अंडर रूट नहीं रहेगा, अंडर रूट नहीं रहेगा, उसका स्क्वायर। हाँ ये जो भूल कर रहे हो ना, करना जरूरी है, भूल करके आदमी सीखता है, आगे चल के भूल नहीं होगा। कर लो भूल अभी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और टोटल एनर्जी यस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गया 3 एनर्जी वाला फॉर्मूला। अब इसको कर दो बस, लास्ट ये एनर्जी पार्ट ही है, खत्म होने जा रहा है क्लास। फाइंड एक्स माने डिस्प्लेसमेंट व्हेन, जो 9-10 में करते थे ना पी के यू वाला, वैसा ही सामने व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज डबल द पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी बताओ। प्लस माइनस ए बाय रूट 3, प्लस माइनस डबल, प्लस माइनस ए बाय रूट। ठीक, ये तो साम बन रहा है, बस एनर्जी आ गई, एनर्जी का साम बना रहे हैं, एनर्जी लेके करना है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा ट्वाइस, बोला है डबल होगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, वो कितना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये है इक्वेशन। अब क्या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल होने वाला है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस एक्स स्क्वायर सारे उस साइड में लेके जाओ, फ्रॉम दिस x इक्वल्स टू a बाई 3 आ रहा है रूट 3 प्लस माइनस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ एक का चर्चा नहीं हुआ, ये एक सम दे रहा हूं, नेक्स्ट दिन जो ऑफलाइन क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क टाइप का है। ये क्या है कि दिस इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है एक आदमी पूरा स्टाइल से, ठीक है, आदमी खड़ा है स्टाइल से। मास ऑफ द पर्सन इज स्मॉल,
अब ये प्लेटफॉर्म ये जो बना है ये एक स्टाइलिश प्लेटफॉर्म है, मतलब एक अजीब सा प्लेटफॉर्म है। इट इज मूविंग अप एंड डाउन, ये SHM कर रहा है, माना प्लेटफॉर्म में आदमी खड़ा, आदमी को लेके ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, आइडिया हो गया। स्प्रिंग लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे स्लॉट काटा हुआ है, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम मूविंग इट अप एंड डाउन। तो आदमी जो है एम मास का, उसको लेके ये SHM कर रहा है ऐसा। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म का पोजीशन है इसको, अच्छा नीचे कर ले रहा हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म का पोजीशन है इसको मान लो मीन पोजीशन। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जबकि ये यहां पे आएगी, ये तो दूर हो गया, प्लेटफॉर्म यहां पे आएगा, आदमी बचाओ बचाओ कर रहा है, सारा स्टाइल खत्म हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लेटफॉर्म सबसे नीचे आया, ग्राउंड को टच नहीं करेगा, ग्राउंड को टच नहीं करेगा, नीचे आएगा थोड़ा सा, इट विल नॉट टच ग्राउंड, ऐसा। तो आदमी नीचे देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है। तो दिस पोजीशन इज x इक्वल्स टू प्लस ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दिस पोजीशन इज x इक्वल्स टू माइनस ए। देखो कभी कभी मैं लिखा था ना y, क्यों लिखते हैं, देखो तो इफ आई चेंज दीज वैल्यूज ऑफ x एज द वैल्यूज ऑफ y, तो बेटर होता है ना, ये तो y एक्सिस में मोशन कर रहा है, तो ये x इक्वल्स टू 0 ना लिख के y इक्वल्स टू 0 लिखने से भी नो हार्म, x भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन y लिखने से बेटर माने निकलता है। तो ये ऐसे SHM कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऐसे। तो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, एट द टॉप एंड बॉटम पोजीशंस। ये जब यहां पे आएगा तब उनका नॉर्मल रिएक्शन उनका ऊपर कितना होगा, कौन देगा नॉर्मल रिएक्शन, प्लेटफॉर्म। और जब ये नीचे आएगी प्लेटफॉर्म, तब वो कितना नॉर्मल रिएक्शन देगा पर्सन को। तो मान लो कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा पर्सन के ऊपर, यहां पे वो होगा मान लो N1, और यहां पे भी प्लेटफॉर्म पर्सन को नॉर्मल रिएक्शन देगा N2। तो मैंने यहां पे जो पूछा है नॉर्मल रिएक्शन जो पूछा है क्वेश्चन, यहां पे पिक्चर से अगर समझने का कोशिश करोगे तो बोला है कि N1 कितना होगा और N2 कितनी होगी, बस ये है क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ दिस डेटा गिव। ठीक है, जाओ बाय।